Hello everyone, I am Sarthak and I welcome you to Civils with Akash Chanakya IAS Academy. So ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨਸ ਦੀ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ. This is the lecture 3 in our current series which we have started on ethics. Right? Already two lectures cover हो चुके हैं, ठीक है? You can definitely watch those two lectures and then come on to this lecture. Right? So without wasting any time, let's straight away start our lecture of the day. Okay, this is the third lecture, ठीक है? Right. So lecture start करने से पहले I have an important announcement for you, right? See, चाणक्य IAS Academy ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ means the brain box, right? Which includes means the test series plus printed notes. You will be getting two things at a very affordable price of just rupees 8,000. And if you want only the mains test series, that will be available to you at rupees 5,000 only. 5,000 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਨਾਲੇ 8,000 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ printed notes plus test series, right? It's at such an affordable price. This booklets have been prepared very thoroughly, right, under the guidance of very auspicious people, right? As you can see the names of all of them, and if you want anything regarding that, you can call into Chanakya IAS Academy for further queries. All right, so let's start. See, GS, you should be thorough with the syllabus, ठीक है? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਰਹੇਗੀ. When we are talking about ethics, you should be knowing what all topics you need to cover. ठीक है, सिलेबस वारी-वारी ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ. सिलेबस ਤੁਹਾਡੇ टिप्स ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है? सिलेबस should be on your tips. See, आज का अपना टॉपिक क्या है, ठीक है? We have already covered essence. Now today's topic will be determinants and consequences of human ethics in human actions. We will be dealing with this and further on, and dimension of ethics also if the time allows, right? Okay, see, ethics GS1 के अंदर भी है, ठीक है? एथिक्स GS2 में भी मिलेगा आपको, एथिक्स आपका GS4 के अंदर भी काफी ज्यादा प्रिविलेंट है. सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, यू कैन से ओवरऑल, ठीक है? ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट इट, you can definitely say 100 to 120 marks definitely totaling in total आपके GS ethics में से आएंगे. Yes or no? So very important subject. चलो, तो let's start. See these questions, इनसे हम डील करेंगे जब हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा, then we will be dealing with these questions. These are previous year questions, ठीक है? These are previous year questions which have been asked in Punjab PCS mains, ठीक है? So जब टॉपिक कवर हो जाएगा then we will be covering to these questions. Okay, so values हमने कवर कर ली थी कल. We already dealt with morals, ethics, and I hope you all are thorough with it now. कि what does morals, what are values, what is ethics, right? अच्छे से टैकल किया था इसको कल. Yes, essence of ethics, क्या मीनिंग था essence का? Assessment what? Essence means the intrinsic property. The intrinsic property of ethics. The characteristic, the basic characteristic of ethics. Yes or no? For example, ethics is very diverse, ठीक है? Ethics is very dynamic. Yes or no? As well as ethics is very abstract. Right? So these are some of the basic characteristics, or you can say the essence of ethics. ठीक है, कल अच्छे से कवर किया था. See, essence is it leads to good life. फटाफट देखते हैं. It leads to good life. It is very beneficial. Ultimate good की तरफ है. Yes or no? Then it is contextual. Innate goodness abstract है. Yes or no? Contextual मतलब, ठीक है, एक देख लेते हैं. Contextual का क्या मीनिंग था? ठीक है, ये डिपेंड करता है कल्चर्स पे. जहां पर जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, राइट, वहां के एथिक्स की, वहां पे कल्चर क्या फॉलो होता है, ट्रेडिशन क्या फॉलो होता है, वहां की इकोनॉमी, डिफरेंट फैक्टर्स की बात करें वहां पर, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है. ओके, इट इज सब्जेक्टिव. यस, इट इज सब्जेक्टिव. इट इज वॉलंटरी इन नेचर, ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, ठीक है.
प्रिस्क्रिप्टिव की बात करें, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ एथिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स जिसके अंदर आपके टेलियोलॉजिकल, डियोंटोलॉजिकल एंड वर्च्यू एथिक्स आते हैं, आएगा भी आगे टॉपिक। ठीक है, आई विल ट्राई कि आज ही कवर हो जाए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे। ओके, सो what is the meaning of determinant of ethics? First of all, let's see that. Okay, so what is the meaning of determinant? Determinant का meaning क्या होता है? Determinant का meaning है the factors which help us to decide what is right or wrong. ठीक है, the factors which helps us to decide between right and wrong. Right? For example, अगर आप कुछ नेशंस में जाओगे, ठीक है, या कुछ सोसाइटीज में, वहां की इकोनॉमी डिसाइड करती है वहां की एथिक्स। कहीं जगहों पे जाओगे, वहां की पॉलिटी डिसाइड करेगी, राइट? कहीं जगह पे उनका कल्चर डिसाइड कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So these will be called as determinants of ethics, right? So let's see the definition. See, determinants of ethics are factors that shape the ethical standards and behavior of people. These determinants are the basis on which people decide what is right and wrong. Yes or no? अभी देखा, for example, some society may decide right and wrong based on the economic philosophy, whereas some society may decide it based on the historical experiences. इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो 1947 से पहले का इंडिया जो था, इनफैक्ट 1947 के जस्ट बाद का जो इंडिया था, आई मीन, एंड करंट इंडिया, दोनों में बहुत डिफरेंस है। उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी और हमारे हिस्टोरिकल जो रहे थे, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस जो रहे थे हमारे, ठीक है, उनकी वजह से ही हमारे एथिक्स सिस्टम ने डिसाइड करे थे कि इंडिया के लिए करंटली क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। और आज की डेट में हमारे फैक्टर्स डिफरेंट है। यस और नो? ठीक है, तो इस बेसिस पे डिसाइड होता है। ओके, so just like other values, ethical values are also determined by the factors like family, education, media, conscience and so on. ठीक है, these can be called as the determinants as well, right? आपकी inner being सबसे बड़ा factor होता है वो as an individual, family, education, ठीक है, media, right? All these things play a very important role in determining ethics, right? Apart from these, there are other social factors also, like first, time. Time to time, ethics keep changing. With time, ethics keep on changing, right? So time also determine the ethical standards. Like sati pradha, untouchability, right? एक टाइम था जब सती आपका जो था लीगल था, एथिकल था, बट क्या आज की डेट में है? नहीं। टाइम के साथ उसके अंदर चेंजेस देखने को मिले। यस और नो? विमेन की जो आपकी लेवल था, ठीक है, विमेन की जो क्वालिटी थी, राइट, वो पहले डिफरेंट थी, अब अलग है। जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, बेसिकली विमेन की पोजीशन, नॉट क्वालिटी, दैट इज अ रॉन्ग टर्म टू यूज। ओके, देन इट इज एक्सपीरियंस। ओके, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। आपको समझ आ रही है चीजें? अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट आपका क्या है? एक्सपीरियंसेस। सी, लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है, इट शेप आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स एथिक्स एंड मोरालिटी। यस, फॉर एग्जांपल अशोका की अगर हम बात करें, ठीक है, कलिंगा की वॉर से पहले अशोका के लिए वायलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, ठीक है, इट वाज वेरी यूजुअल फॉर हिम। बट आफ्टर कलिंगा वॉर, व्हेन ही एक्सपीरियंस्ड, अपने आंखों देखा उन्होंने, जब वायलेंस देखी, जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, उसके बाद जो हाल था ह्यूमन लाइफ का, जो लॉस उन्होंने देखा, जो ब्लड बाथ उन्होंने देखा, उसके बाद उनके एथिक्स ही चेंज हो गए, राइट? So after some experiences, we might adhere to ethical standards strongly. For example, Ashoka's experience in Kalinga War changed his standard of kingship, right? After witnessing road accidents, we tend to drive more carefully and adhere to traffic rules. ठीक है, नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली जिनके साथ भी कोई ट्रेजिक ऐसा रोड एक्सीडेंट हुआ होता है, ठीक है, उससे पहले और उसके बाद के जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, उनके एथिक्स होते हैं ड्राइविंग को लेके, वो एकदम चेंज हो जाते हैं।
उसके बाद वो बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होंगे, ड्राइविंग के रूल्स फॉलो करेंगे, बट उससे पहले कहीं ना कुछ एरर रहा होता है, राइट? तो ये एक्सपीरियंस की वजह से ही चेंज हुआ। तो एक्सपीरियंस इज ऑल्सो डिटरमाइन एथिक्स। देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस इज ऑफन यूज्ड टू जज देयर एथिकलिटीज, ठीक है। अब कोई भी एक्शन है, ठीक है, कोई भी एक्शन है उसका आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि इसको करने के बाद कितना हमें फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, उसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करोगे उसके एथिक्स। यस, तो पॉजिटिव जो एक्शंस होते हैं जनरली उनका बेनिफिट हमेशा ज्यादा ही मिलता है आपको, तो अल्टीमेटली वो आपकी टेंडेंसी रहेगी उसको परफॉर्म करने की, उस एक्शन की तरफ जाने की, एक्शन करने की। यस, तो फिलोसफी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कॉल्स फॉर ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। अब ये क्या है यूटिलिटेरियनिज्म, अभी आएगा आगे डायमेंशन ऑफ एथिक्स, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या है। बेसिकली यूटिलिटी पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छे से बात करेंगे अभी, यहाँ देख लेते हैं फिर भी। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स causes displacement of many people, but government justifies it basis on the number on the greatest number of people benefited by drinking water, irrigation, electricity, etc. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि यूटिलिटेरिज्म की थ्योरी है, यहाँ पर बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ही हो रहा है कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, कि अगर आप डैम बना रहे हो, नो डाउट आप ट्राइबल बहुत सारे लोगों को, नॉट जस्ट ट्राइबल्स, बहुत सारे लोगों की लाइक नुकसान भी होता है उनका, आप एनवायरनमेंट के साथ काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन करते हैं, बट इसका बेनिफिट बहुत लोगों को होता है, ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी बहुत बड़े लेवल पे आती है इसकी वजह से, राइट? ग्रेट, तो काफी ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है लोगों को, पीस लेके आओगे आप, डेवलपमेंट होगी, तो उस बेसिस पे जस्टिफाई किया जाता है इसको। देन कम्स इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, बहुत सारे ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर्स आपके, बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स, ठीक है, वो भी इंस्पायर करते हैं, तो वो एक सही एक्शन करने की उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, तो वो अपने क्या, आप में क्या हो गया, एक बड़ा डिटर्मिनेंट हो गया। सी एग्जांपल्स ऑफ पर्सनालिटीज और इवेंट्स ऑफन शेप ethical standards of people as they impact mind and emotions. For example, student leaders in India often justify their cause and protest by giving example of Bhagat Singh, who was also a radical socialist, right? Okay, I hope things are getting pretty clear to you. Then comes power. Unfortunately true, but power is also very important determinant of ethics. Like हमारी जो गवर्नमेंट है वो पावर में है, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो डिटरमाइन कर रही होती है एथिक्स। यस, इकोनॉमिकली जो ज्यादा स्ट्रोंगर होगा वो कहीं ना कहीं वही डिटरमाइन करेगा एथिक्स को, क्या सही है क्या नहीं, यही राइट। सो और सोशल वर्कर्स भी इनफैक्ट डिटरमाइन कर रहे होते हैं। So political, economic or social power often laid out ethical norms for a society, right? Governments create public policies and laws which themselves declare what people should and should not do, right? Wealthy individuals like celebrities and social leaders like Sadhguru influence people and affect ethical standard. अब ये अच्छा एग्जांपल है, आप दे सकते हैं सदगुरु का, आजकल तो इन्हीं का बोलबाला है, ठीक है। दे आर इनफैक्ट द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, वॉट एवर दे से इनके फॉलोअर्स आंख बंद करके वही फॉलो करते हैं, उनके लिए वही एथिक्स है, वही सब कुछ है फिर। ओके, देन एजुकेशन, श्योरली बाय, ठीक है, आपकी अपब्रिंगिंग में ही आपके अंदर लाया जा रहा है, अपब्रिंगिंग से ही आपका एजुकेशन जो करिकुलम है आपका, वो आपका एथिक्स डिसाइड कर रहा है, पहले आपकी मोरालिटी डिसाइड करेगा, ठीक है, वही आपका एथिक्स भी शेप कर रहा है, इट टेल्स यू व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू डू, और वो आपके अंदर से निकालना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना टाइम इन्वेस्ट हुआ है उस पर, इतना कुछ इन्वेस्ट हो गया, तो आपके अंदर इम्बाइब भी हो जाता है वो। तो एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, राइट? देन गवर्नेंस, गवर्नेंस की बात करें तो the government frames certain laws and policies through which it incentivizes a particular behavior and disincentivizes another type of behavior. Such incentive structure shapes ethical standards of people as well as its adherence. Yes or no? Right? जो पॉलिसीज होती है जिसमें इंसेंटिवाइज कर रही है, मतलब गवर्नमेंट जो फॉलो कर रही है जिन पॉलिसीज को, वो चाहती है आप फॉलो करें, वो आपके एथिक्स बन जाते हैं। जिसको वो नहीं फॉलो चाहती, जिसमें कम से कम इंसेंटिव मिल रहे होंगे आपको, तो आप नहीं फॉलो कर रहे होगे उसको, इंसेंटिव्स की फॉर्म में करती हैं वो। ये इंपॉर्टेंट कोट आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। विलियम ग्लैडस्टोन सेड, इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डू रॉन्ग एंड इजी टू डू राइट, राइट? गवर्नमेंट
ये बहुत अच्छा कोट है, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस के अंदर भी कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत अभियान अफेक्टेड एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल इन फेवर ऑफ क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विमेन की कंडीशन को बेटर करने के लिए लेके आई गवर्नमेंट, राइट। स्वच्छ भारत अभियान सैनिटेशन की तरफ, राइट, आपकी हाइजीन की तरफ है ये, ठीक है। लोगों के एथिकल स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं इसकी वजह से। ऑल्दो कितनी इफेक्टिव रही है कितनी नहीं रही है वो अलग चीज है, वो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, बट द इंटेंशन बिहाइंड दैट वाज गुड। दैट इज ट्रेडिशन एंड कल्चर। Prevailing practices in a society are accepted as the norm by people and shape the ethical standards. ट्रेडिशन और कल्चर अपने आप में बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है किसका, एथिक्स का, ठीक है। जो प्रैक्टिस सोसाइटी में प्रिवेल कर रही होंगी, जो फेवर हो रही होंगी, मतलब चल रहा होगा, उसी के वे ही आपके एथिक्स डिटरमाइन करते हैं, यस और नो। अगर सोसाइटी के अंदर आपके लाइक कई सोसाइटी के अंदर होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, वो एथिकल मानी जा रही है, कई जगहों पर अभी भी नहीं सही तरीके से देखी जाती, तो अकॉर्डिंगली आप करोगे। कई सोसाइटीज में जेंडर इक्वालिटी पे बहुत ज्यादा बोला जा रहा होता है कि नहीं करनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी को फेवर करना चाहिए, राइट, कई जगह पर नहीं है ऐसा, तो अकॉर्डिंगली। सो फॉर एग्जाम्पल, जेंडर इनइक्वालिटी इज कंसिडर्ड एथिकल इन सऊदी अरेबिया ड्यू टू इट्स पेक्यूलर कल्चर एंड ट्रेडिशन, राइट। मुस्लिम वर्ल्ड में वहां पर विमेन की कंडीशन कोई खास अच्छी नहीं है अभी भी, ठीक है। वहां जेंडर इनइक्वालिटी एक एथिक्स ही माने जाते हैं, वहां की गलत नहीं है उनके हिसाब से। सो आप इसका एग्जांपल डेफिनेटली दे सकते हैं, ओके। देन इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकलिटी, फटाफट देखेंगे इस टॉपिक को, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकलिटी को। द नेचर ऑफ एक्शन आपका, सी, डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या डिफरेंस है। व्हेन वी टॉक अबाउट एथिकलिटी, ये एक्शंस की बात करता है कि कौन से एक्शंस आपके एथिकल हैं, राइट। वहां पे एथिक्स में बात करें डिटर्मिनेंट्स, वो एथिक्स को स्टार्टिंग में डिसाइड करने के लिए ही बात हो रही है वहां पर कि क्या चीज एथिक्स है, क्या क्या एथिक्स का पार्ट है क्या नहीं है, राइट। ये इंप्लीमेंटेशन काइंड ऑफ पार्ट है कि कौन से एक्शन आपके एथिकल काउंट होंगे कौन से नहीं काउंट होंगे, क्लियर है। आई मेरे को लगा कि आपको डाउट होगा, दैट्स व्हाई आई क्लियर दैट। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं कि सर एथिकलिटी और एथिक्स और एथिकलिटी में क्या डिफरेंस है, वहां पे क्लियर कर देंगे इफ एनीवन हैज एनी डाउट रिगार्डिंग इट। सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ द एक्शन। Ethicality depends upon the fundamental nature of action itself. For instance, murder is unethical act in itself and it cannot be justified by any intention or under any circumstance. On the other hand, acts like polluting the environment are unethical but it can be justified if it is within ecological limits and used for good purpose like rural electrification. ये क्या कह रहे हैं कि लाइक कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिनको आप किसी भी वे में जस्टिफाई नहीं कर सकते एथिकल। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर कोई भी यूनिवर्सली अनएथिकल है, सिंपल एज दैट। वेर एज आपके डैम्स बनाना, ठीक है, भले ही हम बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं वो, उसके अलावा लाइक कुछ ऐसी चीजें लाइक पोल्यूशन मचाना, ठीक है, पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट, अपने आप में अनएथिकल है, नो डाउट, बट कुछ केसेस में अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर ही पोल्यूशन हो रहा है बट उससे काफी सारा बेनिफिट मिल रहा है पीपल को, फॉर एग्जाम्पल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वहां पर भले ही पोल्यूशन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काफी हद तक पोल्यूशन जनरेट होगा, बट स्टिल इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है, और पोल्यूशन भी एक लिमिट वाली पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही कर रहे हैं जो जो एनवायरमेंट के लिए इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है, देन इट इज एथिकल, इट इज फाइन, राइट। देन इंटेंशन, द इंटेंशन बिहाइंड एनी एक्शन मस्ट बी एथिकल, ठीक है। The intention behind an action must be ethical and only then the action can be possibly ethical. If intention is wrong, no action can be ethical even if the action is good in itself. For example, अगर कोई फ्रॉड एनजीओ है, ठीक है, वो चैरिटी कर रही है, तो क्या ये एथिकल होगा? सो आंसर है नो। वो चैरिटी बेसिकली चैरिटी के पर्पस के लिए नहीं कर रहे, वो ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अनएथिकल है उसमें में। देन ऑन द अदर हैंड, ब्रेकिंग अ ट्रैफिक रूल कैन बी एथिकल इफ अ पुलिसमैन डज इट टू कैच अ क्रिमिनल, ठीक है। इसके अलावा भी लाइक अगर कोई बंदा कोई एक्सीडेंट देखा, उस केस में आप उस एक्सीडेंट वाले बंदे को इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, बट इन बिटवीन आपको बहुत सारे रेड लाइट अगर क्रॉस करनी पड़ी, तो क्या वो एथिकल होगा? अनएथिकल होगा? नहीं, वो एथिकल ही है, बिकॉज इंटेंशन सही है आपकी, यू वांट टू सेव दैट इंजर्ड पर्सन, राइट, ओके। देन circumstances, circumstances also decide whether their action is ethical or not.
See, ethics is a dynamic and hence sometimes circumstances decide whether an action is ethical or not. For instance, democracy and citizen-centric governance is ethical governance, but during times of war, martial law can be ethically justified and hence provided under Indian Constitution. ठीक है, circumstances define करते हैं आपका एक्शन एथिकल है कि नहीं है। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस भी रहती है हमारी, सिटीजन को फेवर करते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट लेवल पे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनको पावर दी हुई आई मीन, ठीक है। बट इफ एन सर्कमस्टांस राइजेस, सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो जाए और वहां पर मार्शल लॉ लगाना पड़ जाए, तो मार्शल लॉ बेसिकली डेमोक्रेसी खत्म, ठीक है, सारा कुछ मिलिट्री के हाथ में आ जाए, तो उस केस में क्या आप बोलेंगे कि अनएथिकल है? नो। व्हाई? बिकॉज द इंटेंशन बिहाइंड इज नॉट लाइक, जो सर्कमस्टांस है आपके, सॉरी, जो सर्कमस्टांस ऐसे आपके डेवलप हो गए हैं जिस वजह से ये करना पड़ रहा है, तो वो अनएथिकल नहीं, उस पॉइंट पे वो एथिकल है। यस और नो? सी, वी कंसीडर ब्रेकिंग अ ट्रैफिक रूल्स highly unethical, but if we are getting late for some place, we let ourselves break the rules, ठीक है। सर्कमस्टांस डिसाइड करेंगे, ऐसे नहीं कि हर केस में आपका ट्रैफिक लाइट आप लेट भी हो रहे हो तोड़ दो रेड लाइट सही है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको अगर इमरजेंसी का केस है तभी यू शुड ब्रेक द रेड लाइट। ओके, देन एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस। फर्स्ट इज ओवरलैप, फर्स्ट इज ओवरलैप। यस, डेफिनेटली बहुत सारे आपके डिटर्मिनेंट है वो आपस में ओवरलैप करते ही करते हैं। फॉर एग्जांपल, number of determinants operate at the same time and the ethical standards are the combined work of different factors. For example, integrity of a civil servant in administration depends upon social, economical, political, cultural and other factors. कोई एक फैक्टर पहली बात कभी डिटरमाइन नहीं कर रहा, मल्टीपल फैक्टर्स लगते हैं, सबका ओवरलैप होता है आपस में, बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो इकोनॉमी और आपकी पॉलिटिकल इनके अंदर सेम चल रही होंगी, उनका ओवरलैप चलेगा, डिफरेंट चीजें भी हैं वहां पर, बट बहुत सारे आपके डिटर्मिनेंट है वो मिल के एथिक्स को डिसाइड कर रहे हैं, राइट। तो इस दैट्स द रीजन उनका ओवरलैप चलेगा आपस में। देन वेरिएशन रहेगा, different determinants affect the ethical standards to a different extent. For example, marriage choice for some people is governed by the personal factors, whereas for some it is governed by social norms. जितने भी डिटर्मिनेंट है सबके लिए हर एक डिटर्मिनेंट से अलग अलग चीजें निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेम डिटर्मिनेंट दो डिफरेंट सोसाइटीज के एथिक्स को डिसाइड करने के लिए भले यूज हो रहा हो, लेकिन जो एक्सटेंट होगा उसका, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। उस एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए अलग उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी, सेकंड सोसाइटी के लिए अलग एक्सटेंट तक उसकी वेरिएशन रहेगी, राइट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर दिया हुआ है कि मैरिज चॉइस फॉर सम पीपल इज गवर्न्ड बाय पर्सनल फैक्टर्स वेयर एज फॉर सम इट इज गवर्न्ड बाय सोशल नॉर्म्स, ठीक है। यस, राइट। देन कंफ्लिक्ट, डेफिनेटली कंफ्लिक्ट भी रहता है। Different factors may come into conflict by determining ethical standards. For instance, an individual's thought and experience may make him an atheist, whereas society may push him towards a religion. बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स रहते हैं, लाइक अभी बताया आपको, इंडिविजुअल कॉन्साइंस है जो आपकी आपकी इनर वॉइस है, वो भी अपने आप में एक डिटर्मिनेंट है, आपकी सोसाइटी जो है वो भी अपने आप में एक डिटर्मिनेंट है, लेकिन इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहीं पर एग्जाम्पल दिए कि एक बंदे की इनर, उसकी मोरालिटी, इंडिविजुअल की जो कॉन्शियस वो क्या बोलती है उसको कि भैया मैं गॉड में बिलीव नहीं करता, बट सोसाइटी के अकॉर्डिंग गॉड में बिलीव करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट अराइज होता है। सो दिस इज इट, सिंपल सिंपल रखना है, एक एक लाइन में खत्म करना है, बिल्कुल ज्यादा लंबा टेंशन नहीं लेनी चीजों की, ठीक है। इतना कर लिया इनफ है, एग्जाम के लिए आपकी इनफ है, आराम से लिखाओगे, अच्छे खासे मार्क्स भी ले आओगे। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स। एज द नेम सजेस्ट, consequence of ethics मतलब the result that you see, result of following the ethics, ठीक है। क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ के अंदर अगर आप एथिक्स को फॉलो करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स। यस, चलो, सो लेट्स सी। ऑब्वियसली फर्स्ट, खुशियां ही खुशियां आएंगी, हैप्पीनेस, ठीक है, दूध की नदियां बहेंगी अगर आप एथिक्स को फॉलो करेंगे। rather than a life of wealth, pleasure, fame, etc. An ethical life is said to be the source of ultimate happiness, ठीक है। बहुत खुशी खुश मिलेगा आपको, खुशी और खुशी मिलेगी आपको अगर आप एथिकल लाइफ फॉलो करेंगे, पैसे की तरफ नहीं भागेंगे, एथिक्स को फॉलो करेंगे, तो अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है। देखते हैं, सच हैप्पीनेस लीड्स टू अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट वेयर एन individual does not need any more or
लेस। ठीक है, बोल बच्चन है बेसिकली, बोलना ही चाह रहे हैं एथिक्स को फॉलो करें, पैसे के पीछे नहीं भागे, अल्टीमेट गुडनेस की तरफ जाएं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, यू विल बी मोर पीसफुल इन दैट केस। ठीक है, एरिस्टोटल सेज दैट प्रैक्टिसिंग द गोल्डन मीन, मिडल पाथ, ठीक है, मॉडरेशन एटसेट्रा लीड्स टू हैप्पीनेस व्हिच ही कॉल्स यूडेमेनिया। फॉर एग्जांपल डोनेटिंग ब्लड मेक्स अस फील गुड विद इन। अब एरिस्टोटल, इसको डेफिनेटली आप कोट कर सकते हैं। सी एरिस्टोटल ने क्या बोला हुआ है? एरिस्टोटल की सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफी क्या है आपकी? गोल्डन मीन। ठीक है, जिसको मिडिल पाथ भी कहते हैं। इसको अच्छे से भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है, जब आएंगे फिलोसफर्स पे भी आएंगे, ठीक है, एक टॉपिक लेंगे उसके अंदर, देन वी विल डील विद इट, राइट। बट आप डेफिनेटली यहाँ पे कोट कर सकते हैं। बेसिकली वो कुछ गोल्डन मीन को आप एथिक्स से लिंक कर सकते हैं कि एरिस्टोटल ने गोल्डन मीन का मतलब कि आप एथिकल लाइफ जिए, आप एथिक्स को फॉलो करें। ठीक है, पावर के पीछे ऐसा नहीं भागना, एथिक्स के पीछे जाना है। अगर आप एथिक्स को फॉलो करेंगे तो क्या होगा आपकी लाइफ में? इट विल लीड टू हैप्पीनेस व्हिच ही कॉल्स आप यूडेमिनिया, राइट। फॉर एग्जांपल डोनेटिंग ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है कि बहुत बड़ा काम करके आए हो, करना चाहिए बाय द वे ब्लड डोनेशन। ठीक है, इट इज अ वेरी गुड वर्क फॉर द सोसाइटी। ठीक है, देन पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड सोसाइटी, एथिकल एक्शंस आपकी सोसाइटी की तरफ जो आपका आउटलुक होता है वो भी चेंज करते हैं, पॉजिटिव आउटलुक जनरेट होता है इससे। ठीक है, अ पर्सन हु एक्ट्स एथिकली हैज अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड सोसाइटी, दिस पॉजिटिविटी हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड सोशल कैपिटल। यस और नो? ठीक है, डेफिनेटली। कोई भी डाउट है बच्चे पूछ लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके सामने। ठीक है, ज्यादा घुमा के कुछ नहीं है इसमें। देन नेक्स्ट इज elevated sense of being. Now what is elevated sense of being? Okay, बहुत सिंपल है। ठीक है, सी elevated sense of being, ethical and virtuous behavior makes a person feel like a higher order being who is being lower order needs, who is beyond lower order needs, right। अगर आप वही, ठीक है, एथिकल बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, एक एलिवेटेड सेंस आती है आपके अंदर, आप अपने आप को लोगों से कहीं ना कहीं ऊपर भी समझने लग जाते हो। लोगों से ऊपर मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, राइट, कि आप डायरेक्शन दे सकते हो, कोई अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है उसको सही डायरेक्शन में लेके आ सकते हो, इन दैट सेंस सच बिहेवियर लीड्स टू हायर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, राइट। लॉर्ड रामा डिड नॉट केयर फॉर लोअर ऑर्डर्स नीड्स लाइक किंगशिप, पावर, वेल्थ एटसेट्रा एंड रादर फोकस ऑन वर्च्यूज ऑफ करेज, रिस्पांसिबिलिटी एटसेट्रा। ठीक है, एक एलिवेटेड सेंस आती है कि आप मोह माया से ऊपर उठ चुके हो। ठीक है, अब आपको मोह माया की नहीं पड़ी, आप दूसरी जो रियल हैप्पीनेस है, रियल थिंग्स है, उसकी तरफ जा रहे हो, पीस की तरफ जा रहे हो, राइट, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। इन दैट सेंस यहाँ पर आप लॉर्ड राम का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, ही गेव अप, 14 साल का वनवास काटने चले गए थे वो। ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। देन एक्सेप्टेबिलिटी एंड लाइकेबिलिटी, अगर आप एथिक्स को फॉलो करेंगे तो आप मोर एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी रहेंगे, आप मोर लाइकेबल रहेंगे बाकी बंदों से। ठीक है, व्हेन अ पर्सन शोज एथिकल बिहेवियर सच पर्सन गेट्स एक्सेप्टेड इनटू अ सोसाइटी एंड इज आल्सो अप्रिशिएटेड फॉर हिज और हर एक्शंस। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन हु रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स आर अप्रिशिएटेड बाय देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यस और नो? ठीक है, जो रिस्पेक्ट करते हैं अपने एल्डर्स की, मतलब एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उन ज्यादा उनके लिए क्या होगा, अप्रिसिएशन मिलता है उनको हमेशा ही। देन जो मतलब सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं, लाइक जो प्यार से भी बात करते हैं, और टॉक रिस्पेक्टफुली विद अदर्स एज वेल, लोग उनसे उसी हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, देन क्रेडिबिलिटी, ethical and virtuous persons are trusted upon by other people and their words and actions carry greater weight than that of ordinary persons। एथिकल जो पर्सन होगा, बंदे को पता होता है कि एथिकल है, इसके एक्शंस एथिकल रहते हैं, तो उसकी हर बात में वजन होता है। पीपल लिसन टू दैट पर्सन वेरी केयरफुली, क्रेडिबल माना जाता है उनके वर्ड्स को। ठीक है, इसीलिए हम बहुत सारे ऐसे हायर अथॉरिटीज हैं, ठीक है, कोई ऑफिसर अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो आप उनकी बात ध्यान से सुनोगे, क्योंकि वो उस पोस्ट पे एक एथिकल पोजीशन दिखा रहे हैं वो। यस और नो? आप अपने घर में, कई लोग अपने पेरेंट्स की सुनते हैं, कई लोग नहीं सुनते, लेकिन पेरेंट्स की सुननी चाहिए। ठीक है, बिकॉज दे नो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू and what is the wrong thing not to do. So for instance, leaders with integrity and honesty have greater influence upon public
देन लीडर्स विद क्वेश्चनेबल रिकॉर्ड्स। अब अन्ना हजारे कुछ बोले तो उसको सारे कान खोल के सुनते हैं, उसको क्रेडिबिलिटी मिलती है उन वर्ड्स को, ठीक है। बट आगे इसके अपोजिट आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स। सो पॉलिटिकल पार्टीज अर्ज रिस्पेक्टेड पब्लिक फिगर्स टू एंडोर्स देम, yes or no? Okay, then next, accomplishment. Ethical behavior is not only morally prescribed but also practically beneficial. People with ethics and values are likely to achieve greater success in long term. ठीक है, एथिक्स आपको ग्रेटर सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं, टेंडेंसी रही है, ठीक है, कि जो बंदा एथिकल रहता है उसकी सक्सेस के चांसेस भी हायर ही रहते हैं लाइफ में आगे भी। फॉर इंस्टेंस ऑनेस्ट इंडिविजुअल्स लाइक किरण बेदी, टीएसआर सुब्रमण्यम हैव हेल्ड हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट। ऑल्दो उन्होंने फेस ही बहुत कुछ किया है बट काफी अच्छी पोजीशंस पे भी रहे हैं। आप एग्जांपल दे सकते हैं इनका। प्रोफेशनल एथिक्स इज अ बिग फैक्टर इन द करियर एडवांसमेंट ऑफ लॉयर्स, डॉक्टर्स एटसेट्रा। ठीक है, नोट डाउन करते रहना है, जितना हो सके साथ साथ पॉइंट्स बनाते रहना है। बाकी इसकी पीपीटी या उसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। देन इंटरपर्सनल रिलेशंस। Ethical behavior leads to mutual kindness, politeness, etc. and hence leads to good relations with people. Right? आपके relations अच्छे होते हैं लोगों से. For instance, greeting people with a smile or showing courtesies leads to reciprocation and hence good relations. हंस हंस के सबसे बात करना, कराम इंडिया के अंदर although it is not that practicable कि आप ज्यादा हंस हंस के लोगों को समझे तो लोग पागल समझते हैं, कहीं तो मारने पीटने भी आ जाते हैं कि क्या बात होगी, ठीक है। बट बाहर आप जाओ तो वहां पे लोग आपस में बहुत पोलाइटली बात करते हैं, स्माइल पास होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है ऑल्दो, ठीक है। सो रिसेंट स्टडी बाय हार्वर्ड ऑन एडल्ट डेवलपमेंट 1930-2015 has concluded that good relationships keep us happier and healthier। ये तो मैं देखा भी है, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी रिलेशनशिप आपके सही चल रहे हो, सारी जगह से खुश रहते हो, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ठीक है, स्यापे मुकदे नहीं। देन डिसीजन मेकिंग। In modern complex lives, ethics tells us what is the right thing to do in times of ethical dilemmas, whereas we are confused between two equally good and bad alternatives। Definitely हमारा सब्जेक्ट भी यही है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, अपना सब्जेक्ट यही है कि एथिक्स क्यों पढ़ रहे हो आप, डिसीजन मेकिंग के लिए। केस स्टडी जो पढ़ेंगे वहां पर यही तो कर रहे हो कि आप आंसर भी इस हिसाब से करोगे, ये सब करा के सोल्यूशन निकाल रहे हो, प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन निकाल रहे हो एथिक्स का यूज करके। yes, it makes you it helps you out in making the right choice, right decision। Ethics also provide decision makers the basis to justify their course of action। For example, civil servants has code of ethics to guide their decision making। code of ethics, ठीक है, क्यों बनाया गया सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो कल को जब आप सर्विसेज में जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको दिखेगा, ये आपके लिए क्या है, एथिकल डिसीजन, आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है आपको कि कभी आप किसी प्रॉब्लम एथिकल डिलेमा में फंस जाए तो वहां पर आप कोड ऑफ एथिक्स का यूज करके जस्टिफाई भी कर पाएंगे अपने कोर्स ऑफ एक्शन को। यस, ओके। देन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स फॉर सोसाइटी। पीस एंड हार्मनी लेके आओगे सोसाइटी के अंदर, स्टेबिलिटी आएगी, पीस होगा, प्रोग्रेस होगा, ठीक है, आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे, लड़ाइयां नहीं मचेंगी। इट सी एथिकल बिहेवियर लीड्स टू रेसिप्रोकेशन एंड देयरफॉर लीड्स टू अ पीसफुल एंड स्टेबल सोसाइटी। नेबर्स हैव गुड रिलेशंस इफ दे म्यूचुअली रिस्पेक्ट द नॉर्म्स ऑफ नॉइज, पोल्यूशन, सैनिटेशन एटसेट्रा। अगर सारे एथिकली बिहेव करेंगे, ठीक है, लड़ाइयां भी कम मचेंगी। सिमिलरली देयर इज पीस इन द वर्ल्ड इफ कंट्रीज एडहेयर टू इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है बच्चों, लॉ वर्सेस एथिक्स आएगा भी आगे, लॉ वर्सेस एथिक्स। कुछ मिसलेनियस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन पे अलग से बात करूंगा मैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए, काफी हेल्प करेगा आपको, एसेस में भी हेल्प करेगा, इन जनरल आपकी आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा आपको कि कौन सी चीज लीगल है और एथिकल, लेजिटिमेट, कई सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं, राइट। ओके, लाइक इंटरनेशनल लॉ को अगर सारी जंग सोसाइटी, सारे जो कंट्रीज है अगर वो एथिक्स को फॉलो करेंगी, इंटरनेशनल लॉ बेसिकली इसको अगर फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली वर्ल्ड ऑर्डर बहुत पीसफुल रहेगा। देन गुड गवर्नेंस। यस, एथिक्स हेल्प द गवर्नमेंट इन गुड गवर्नेंस, हमने काफी बार देख लिया, अभी तो ये यहाँ भी देख लेते हैं। एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, सी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ। एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यही है,
It ensures greater effectiveness and efficiency in administration and leads to greater public satisfaction. Yes or no? For instance, Kiran Bedi turned around the state of Tihar jail. सबको पता ही है, with her values of integrity, compassion, dedication, etc. किरण बेदी को एज अ पनिशमेंट कहीं ना कहीं वहां फेंका गया था कि जाओ भाई तिहाड़ जेल संभालो तुम, लेकिन उन्होंने वहां भी, क्योंकि एथिकल पर्सन है, वहां भी एथिकल काम किया, राइट एक्शंस करे, तिहाड़ जेल की काया पलट दी थी. ठीक है, ओके. और एक बहुत बड़ा एग्जांपल बना था गुड गवर्नेंस का, राइट. देन justice and inclusion. Ethics in social behavior results in equality of status and opportunity, fair treatment, etc. for all people. Okay. Then is justice and inclusion. Ethics in social behavior results in equality of status and opportunity, fair treatment, etc. for all people, especially the weak and vulnerable. ठीक है. सी इंक्लूजन जब आ जाए मतलब सबको इंक्लूड कर रहे हैं, एथिक्स फॉलो करेंगे, ना सिर्फ मेजोरिटी, माइनॉरिटी भी इसमें, आपकी माइनॉरिटी को भी फायदा होता है. ठीक है, जस्टिस अचीव कर पाएंगे आप. एथिकल नहीं होगी सोसाइटी तो जस्टिस से क्या खा खाएगी, क्या खाक होएगी. ठीक है, जस्टिस के लिए एथिक्स फॉलो करना जरूरी है. ठीक है. सी एब्सेंस ऑफ एथिक्स लीड्स टू इनजस्टिस लाइक अनटचेबिलिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा. सी अनटचेबिलिटी एक टाइम पे एथिकल माना जाता था, टाइम के साथ चेंज हुआ है वो, बाय द वे. यस और नो? सो बट हुआ कैसे, एथिक्स की वजह से ही हुआ. लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, लोगों की वैल्यूज चेंज हुई, तो अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस को हटाया गया, अल्टीमेटली जस्ट सोसाइटी बनाने की ट्राई करी गई. तो एथिक्स विल डेफिनेटली लीड टू अ जस्ट सोसाइटी. It leads to inclusivity. It includes all sections of society. Equitable and inclusive development. Yes or no? Inclusive हमने अभी देखा, definitely बहुत inclusive रहेगा आपका. Then in the sphere of economy, ethics is essential. Ethics ensures fair opportunity, fair distribution of resources, social mobility, and so on. Unethical behavior leads to scams, meltdown, labor exploitation, etc. ठीक है, इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में एथिक्स हेल्प कर रहा है. इक्विटेबल डेवलपमेंट होगी, सारे के सबको सबको फायदा मिलेगा. ऐसा नहीं कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही बेनिफिट कर रही है इकोनॉमिकली, अगर एथिक्स को फॉलो करा जाए. सबको इक्विटेबल, एथिक्स को फॉलो करोगे तभी तो सबको इंक्लूड करने की बात करोगे, नहीं तो कुछ सेक्शन ही इसका फायदा उठाते जाएंगे, एक्सप्लोटेशन चलेगी, राइट. देन फ्यूचर जनरेशन को भी अगर एथिक्स फॉलो करेंगे तभी तो फ्यूचर फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा होगा. क्यों? एक तो आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, दूसरा सस्टेनेबली चीजों को यूज करेंगे, तो सस्टेनेबल करेंगे तभी तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा. सो आई थिंक सोसाइटी सेट्स एन एग्जांपल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ. दे ऑब्जर्व, लर्न एंड डेवलप वैल्यूज व्हिच एंश्योर एथिकल बिहेवियर ऑन देयर पार्ट. दिस लीड्स टू अ सस्टेनेबल सोशल ऑर्डर. फॉर एग्जांपल, व्हेन young boys see women being respected within the household, they respect the women in their social life as well. Yes or no? So in this sense, in this way, the ethics needs have very important consequences on the society as well. Okay, so now let's move on. See, अब हमें आते हैं अपने next topic पे, which is the dimension of ethics. It is a very important topic. Let's come on to that. ठीक है, consequences over, essence complete कर लिया हमने, consequences हमने देख लिए, अब आते हैं dimension of ethics के ऊपर. See, ethics के dimension मतलब the different aspects of ethics. Ethics is a system of moral principles derived from Greek word ethos, which means habit or character. Another definition आप ये भी use कर सकते हैं if you want. ठीक है, as a discipline, ethics is a part of moral philosophy which goes into identifying and building principles of right or wrong conduct. ठीक है जी. As a practice, ethics provide us a set of rules and principles that guide our conduct as right or wrong. ये सब हमने देख लिए. ठीक है, ये सब अभी समझा है हमने, ये सिर्फ आपके लिए समराइज किया हुआ चीजों को यहाँ पर. Ethics are a system of rules widely accepted by the society. Ethics can also be called public morality. बताया था स्टार्टिंग में. ठीक है, ओके. सो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, थियोरेटिकल डायमेंशंस. बट थियोरेटिकल से पहले लेट्स कम ऑन टू
नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। कम हियर, सी, ये आपके सामने तीन बेसिक डायमेंशंस हैं, इसके अलावा भी काफी सारी डायमेंशंस आती हैं आपकी। व्हेन वी टॉक अबाउट डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, आपकी अप्लाइड एथिक्स भी आएगी, उसके बारे में भी बात करेंगे इसके बाद। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस ऑन ओवर हियर ओनली। सी, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ एथिक्स आर देयर। वन इज नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स, देन यू हैव डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, एंड देन यू हैव मेटा एथिक्स। मेटा ये इतनी ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, so you can negate this as well, ठीक है, बट बेसिक्स आप देख लेंगे। बट दीज टू, स्पेशली नॉर्मेटिव एथिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आस्क मी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी देखेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मेटिव एथिक्स। इसका सीधा सीधा यूज होता है आपके क्वेश्चंस के अंदर, आंसर राइटिंग के अंदर भी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्मेटिव एथिक्स, इसके तीन टाइप्स हैं आपके आगे, टेलियोलॉजिकल, डियोंटोलॉजिकल और वर्च्यू एथिक्स। टेलियोलॉजिकल एथिक्स, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स एंड वर्च्यू एथिक्स। सो ये तो होगा बेसिक्स, ठीक है। बट व्हाट इज नॉर्मेटिव एथिक्स, लेट्स कम ऑन टू दिस। सी, नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर आपके सामने क्या वर्ड है, नॉर्म या फिर प्रिस्क्रिप्टिव। तो ये बेसिकली कुछ प्रिस्क्राइब करेगा आपको, कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, कि आपको ये खाना है, ये करना है, वो करना है, तो वही सेम प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स है। ये एक्शन ओरिएंटेड है, इट इज मोर टुवर्ड्स एक्शन। ठीक है, कौन सा काम आपको करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए वो डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर। वही नॉर्मेटिव भी क्यों कहा गया, बिकॉज इसके अंदर क्या वर्ड है आपका, नॉर्म। ठीक है, वो सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं यहाँ पर जो कि फॉलो करने हैं। अब नॉर्म क्या होता है क्या नहीं वो आगे देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होता है नॉर्म्स के भी, वो देखेंगे भी, बट अभी के लिए इस टॉपिक पे रहते हैं। राइट, सो नॉर्मेटिव एथिक्स आर द थ्योरीज दैट प्रिस्क्राइब व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ मॉरल डिलेमास और कंफ्यूजन्स। एथिक हम पढ़ ही इसीलिए रहे हैं ना, एथिकल डिलेमा से निकलने के लिए, और नॉर्मेटिव एथिक्स उसी के एक डायमेंशन है जो किसी ना किसी एथिकल डिलेमा से ही निकालेगी, लेकिन किस वे में, वो एक्शन बताएगी सीधा सीधा आपको, कि भैया क्या काम करना है क्या नहीं करना है, ये करोगे तो एथिकल होगा, नहीं करोगे तो एथिकल नहीं होगा। यस, गेटिंग माय पॉइंट। सो देयर आर ब्रॉडली थ्री स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन नॉर्मेटिव एथिक्स, टेलियोलॉजिकल, डियोंटोलॉजिकल एंड वर्च्यू एथिक्स। एक एक करके इन सबको देखते हैं हम। सबसे पहले है अपना क्या, टेलियोलॉजिकल एथिक्स। ओके, so when we talk about teleological ethics, ठीक है, और एक है वैसे आपका डियोंटोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल एथिक्स किस वर्ड से बना हुआ है आपका, टीलियो। टीलियो क्या है आपका, एक ग्रीक वर्ड, ठीक है, इट इज अ ग्रीक वर्ड विच मींस एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट कह सकते हो, अकम्प्लिशमेंट। ठीक है, यहां पर आपका एंड रिजल्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, टेलियोलॉजी के अंदर आपका एंड रिजल्ट सबसे ज्यादा मैटर करेगा। इट इज अनदर नेम फॉर टेलियोलॉजिकल इज कॉन्सिक्वेंशलिज्म। जो कि कौन से वर्ड से आया है, कॉन्सिक्वेंसेस, कि जो भी एक्शन आप कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या चीज है, वो सही है कि नहीं है, तो वो चीज सही है। ये आपका क्या है, टेलियोलॉजिकल। इसके अंदर बेसिकली सिंपली एंड्स जस्टिफाई मींस। एंड्स जस्टिफाई मींस, एक वर्ड में अगर आपको उसको समराइज करना हो एक लाइन में, तो एंड जस्टिफाई मींस। कौन इसके सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन कौन है इसके अंदर, जेएस मिल, ठीक है, बेंथम। इनफैक्ट रियलिटी में जेएस मिल और बेंथम है जो है, इन्होंने कौन सी थ्योरी को प्रोपाउंड किया है, यूटिलिटेरियनिज्म।
यूटिलिटेरियनिज्म, राइट। नाउ व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। उससे पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली टेलियोलॉजी मींस, ठीक है। यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, फॉर इसका एग्जांपल से देखें। इफ आई टेल यू एन एग्जांपल, नॉर्मली क्या कहा जाता है कि टेलिंग अ लाई इज अनएथिकल, दिस इज व्हाट जनरली सेड, ठीक है, कि टेलिंग अ लाई इज अनएथिकल, बट if by telling a lie someone's life is saved, किसी की जान अगर बच जाए, तो वो आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू टेलियोलॉजी करेक्ट होगा, राइट होगा, एथिकल होगा। क्यों? बिकॉज एंड रिजल्ट अच्छा है, यहाँ पर आप किसी की लाइफ बचा रहे हैं, भले ही आपने झूठ बोला, डजेंट मैटर, ठीक है, एंड रिजल्ट अच्छा है, हैप्पीनेस आ रही है किसी की लाइफ में, तो वो जस्टिफाइड है, करेक्ट है। दिस इज व्हाट टेलियोलॉजिकल मीन्स, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कि आपके सामने, ठीक है, आपके सामने एक कोई बंदा गया, उसके पीछे कुछ गूंज थे, गुड्डे पड़े हुए थे, जो कि उसको मारने के लिए जा रहे थे, और वो आपके सामने से जाके कहीं पर छुप गया, और ये सिर्फ आपको पता है। वो तो, और मान लो गुंडे आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं कि भाई बता वो बंदा कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप ऑनेस्ट बनेंगे और बता देंगे? तो टिलोलॉजी कहती है कि भैया आपको नहीं बताना, ठीक है, आप उनको नहीं बताओगे, यू विल लाई टू देम टू सेव दैट पर्सन्स लाइफ, एंड दैट विल बी एथिकल, क्लियर है। सो दिस इज वन ऑफ अदर एग्जांपल ऑफ व्हाट टिलोलॉजी मींस, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर यूटिलिटेरिज्म की। यूटिलिटेरिज्म की थ्योरी जो है वो किस पे बनी हुई है? इट इज बेस्ड ऑन द वर्ड यूटिलिटी। तो ये हमेशा एक्शन, जो भी एक्शन होगा, वट एवर एक्शन यू परफॉर्म यू डू, ये उसकी यूटिलिटी को चेक करेगी। क्या चेक करेगी? इफ दैट एक्शन इज ब्रिंगिंग ग्रेटर हैप्पीनेस, इट इफ दैट ग्रेटर हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल, or you can say precisely in the sayings of Bentham, if it is bringing greatest good for the greatest number। ये बेसिकली इसकी थ्योरी है कि जो भी आपका एक्शन है वो अगर हैप्पीनेस कितने लोगों की, अगर ज्यादा लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रही है तो वो सही है, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं मेजोरिटी व्यू है। फॉर एग्जाम्पल कि ट्राइबल पीपल है, ठीक है, आप बहुत सारे अगर ट्राइब्स की जो जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर डिफोरेस्टेशन कर दी जाती है, ठीक है, तो ये एक तरीके से अनएथिकल दिखता है। बट इफ यू आर डूइंग दैट, वाई आर यू डूइंग दैट, आप वहां पर मैन्युफैक्चरिंग लेके आ रहे हो, फैक्ट्रीज लेके आ रहे हो, प्रोग्रेस के लिए लेके आ रहे हो, जिससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इकोनॉमी बूस्ट होएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी। तो यू आर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ अ लॉट ऑफ अ ग्रेट नंबर। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं कि एक प्लेन जो हाईजैक हुआ था आपका, कोई प्लेन हाईजैक हुआ और आपको दिख रहा है, ठीक है, आप एक सोल्जर हो, आपके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी है, आपके सामने एक प्लेन है जो कि हाईजैक हो रखा है, राइट, और वो सामने एक बिल्डिंग के अंदर जाने वाला है आपके सामने, और बिल्डिंग के अंदर देयर आर मोर देन 10,000 पीपल लिव रिसाइडिंग एट पॉइंट ऑफ टाइम, और प्लेन के अंदर 200 पीपल, और आपके पास जो मिसाइल है, अगर आप उस, आपके दो ऑप्शन है कि वेदर यू कुछ ना करें और जाने दें उस प्लेन को, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी लोग हैं, लेकिन अगर आप एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च करके उस प्लेन को वहीं पर डाउन ब्रिंग दैट प्लेन डाउन, देन यू कैन सेव द लाइफ ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, बट 200 पीपल जो प्लेन के अंदर है उनकी लाइफ जरूर जाएगी। तो यूटिलिटेरिज्म यहाँ पर क्या कहेगा कि यस यू शुड डेफिनेटली लॉन्च दैट मिसाइल बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ, फिर अदर यू आर सेविंग अ लॉट पीपल इन अ ग्रेट नंबर, ठीक है। बट अदर थ्योरीज इसको अनएथिकल बोलेंगी, ठीक है। इन दैट सेंस इट इज यूटिलिटेरिज्म जो कि यूटिलिटी पे बेस्ड है। आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। कौन सबसे मेन प्रोपोनेंट है इसके? जेएस मिल एंड बेंथम,
बट इसके क्रिटिसिज्म भी हैं काफी अपने आप में ही। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या होगा यूटिलिटेरिज्म का, कि इसमें एक मेजॉरिटी व्यू है, माइनॉरिटी को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है। ये इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है बिल्कुल भी, इंडिविजुअल्स की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर हम इक्विटेबल की बात करें कि इक्विटेबल है कि नहीं है, इंक्लूसिव है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जस्टिस इसके अंदर क्या आएगा कि नहीं आएगा, चांसेस है कि नहीं मिलेगा। जस्टिस के अगेंस्ट चलता है कि जस्टिस में एक एक बंदा सब इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे नहीं हो। क्लियर है? ओके, सो लेट्स गेट बैक। राइट, सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अब एक बार। Teleological ethics state that those actions are ethical which lead to the right ends, that is consequences। ठीक है, consequences बताया ना, consequentialism भी बोला जाता है, क्योंकि consequences आपके सही होने चाहिए। ठीक है, this school of thought justifies the actions of Robin Hood due to its good results for the poor people। Robin Hood कौन था? जो कि अमीरों से पैसे चुराता था, उनको लूट के आता था और गरीबों में पैसे बांटता था। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो आप यू आर लूटिंग, स्टीलिंग फ्रॉम समवन, स्टीलिंग अपने आप में क्या अनएथिकल एक्ट है, बट यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेज है उस एक्ट के, वो पुअर पीपल को हेल्प कर रहे हैं, हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे हैं, तो इसमें में टेलियोलॉजी इसको एथिकल बोल रहा है। क्लियर? देन यूटिलिटेरियन यूटिलिटेरियन philosophers like Jeremy Bentham and John Stuart Mill claim that the right course of action is one which leads to greatest good for the greatest number and hence justifies acts like welfareism और big dams etc। yes or no? ठीक है, देख लिया सब। okay, now next is deontological ethics, but we will be dealing with this topic in the next lecture। आज के लिए इतना ही था। for the next part you will have to wait for the next lecture। till then I wish you good luck। if you have any doubt, राइट, इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी इशू है, कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। राइट, वी आर हेयर फॉर यू। ये सीरीज हमने इसीलिए स्टार्ट करी है कि आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सके, एथिक्स आपके लिए कोई ट्रबलसम पार्ट ना रहे। Answer writing, each and everything will be dealt in this series itself। I will help you out in that also, don't worry about it। अभी के लिए एक बार थोड़ा बेसिक्स क्लियर करो, अपने टॉपिक्स को कवर करो, आंसर राइटिंग के साथ साथ चलती जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखते जाएंगे और अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आपके लिए आता रहूंगा। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट स्टे विद मी इन दिस थ्रू आउट दिस lecture series। right, so with this I wish you good luck again and I will meet you in the next lecture। till then take care and bye bye, thank you।